मैम अपना नाम बता दीजिए। Mrs. Esmeralda Mendes Fernandez from Holy Spirit Institute, Margao. I'm the headmistress of that school. आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस Yeah, this award I would like to मैम dedicate. हम दे देंगे आपको। I would dedicate this award to my Diocesan Society of Education Management, my manager, Reverend Father Amandio Valadares, teaching, non-teaching staff, and moreover to my parents, also my siblings, my husband, all who are instrumental for me in helping me to go a long way to get this award. I'm very delighted and humbled to receive this award. Ma'am, is this your first award or another award also you have got? I have got several awards. The major one, I should say, is Christu Jayanti Award, which was given to me in the year 2024 at Bangalore. And amongst 58 different schools and colleges, I was selected as the second best one and for the best performance in implementing the SDGs, that is, the Sustainable Development Goals of the UN in my school. Also, I got a Rise and many other Nation Builders Awards by the Rotary Club and other awards too. Your main work is about sustainable developments or other things? Yeah, in school, we have a school calendar and we plan all our activities which are based on the sustainable goals, wherein by 2030, we will be able to achieve the goals set by the UN. In our small different ways, in various activities that I conduct, I try my best to implement these goals. Which message you want to give from here to the youth of this country? Basically, it is hard work, determination, and also to work with sincerity and compassion. We must have humility. Today's youth, we say they are far advanced. They have got all different social avenues open to them. The mass media communication, they are far ahead of our times. But I feel that they lack humility. So this humility will help them to go a long way to achieve their goals in life. So let us all work together. My message is work hard, be determined, and be humble. Thank you. From which state you have come here? I've come from the beautiful state, the scenic state of Goa, and the institute that I belong to is Holy Spirit Institute, Margao. Thank you. नमस्कार, हमें नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो है एक अवार्ड का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे साथ जो है डॉक्टर वालिया जी जो है वो जुड़ चुके हैं। सर, आज आपको जो है अवार्ड भी शायद दिया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड जी? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो प्रेस्टिजियस पीस अवार्ड काउंसिल को जिन्होंने ये आयोजन किया, और साथ ही यहाँ मौजूद सभी डिग्नेटरीज जितने भी यहाँ पर चीफ गेस्ट आए और अवार्डीज आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, भारी अभिनंदन। और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज जो सफ़र कहते हैं, जब आप एक छोटी सी एक रोशनी देखते हैं तो आपको लगता है न जाने उसके पार अंधेरा है या रोशनी ये बड़ी हो जाएगी, तो आज बिल्कुल वैसा ही मालूम हुआ है कि जो सफ़र लेकर, जो एक छोटी सी चिराग लेकर चले थे, वो एक बहुत बड़ी मिसाल आज कायम हुई और मिसाल बन गया वो कि आज डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट से मुझे सैयदना को नवाजा गया इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। पिछले 20 से भी ज़्यादा साल से मैं ऑडियो इंडस्ट्री यानी कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो जॉकी रहा हूँ। मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, वॉइस अथॉरिटी कोच भी हूँ, और नेशनल इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स मिले हैं, काम भी किया है। तो ये मेरा छोटा सा सफ़र रहा है जिसके वजह से ये अवार्ड से मुझे नवाजा गया, ऑनरेरी डॉक्टरेट फॉर टुडे। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं अपने युवाओं को तो दे ही सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं संदेश दे पाऊँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ उठाना ही चाहते हैं तो अपनी आवाज़ का बोझ ज़रूर उठाइए, क्योंकि अपनी आवाज़ जो इंसान उठाता है ना, तो लोग उसको सदियों तक याद रखते हैं, उनको सदियों तक सुना जाता है। तो आपकी जो आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कानों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, वो दिलों तक पहुंचनी चाहिए, दिल में घर करनी चाहिए। ये मेरा संदेश है। डॉक्टर वालिया, आज देख रहे हैं बड़े संस्थान के द्वारा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कॉकरोच कह दिया गया यूट्यूबर्स को, जबकि सच्चा न्यूज़ जो है वही चला रहे हैं। बाकियों के ऊपर तो गोदी मीडिया का भी आरोप लगता है।
तो क्या लग रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से राजनीतिक टिप्पणी करने से मैं गुरेज करता हूँ। लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो भी आप काम करें, कोई भी मीडिया हाउस करे, आप बायस होकर ना करें, बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हैदर आसिम है। सर आज आपको अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम बेसिकली आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, जो भी कारीगर का तबका होता है उनके साथ हम काम करते हैं। मैं वैसे श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है पश्मीना शॉल्स बनाने के लिए। तो इसका स्टोर हमारा दिल्ली का एड्रेस है और ग्लोबली हम शिप करते हैं सामान। हमारा एक्सपोर्ट मोस्टली जाता है 95%। और इंडियन गवर्नमेंट से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है। और ब्रांड्स काउंसिल जो है, इनका मैं बहुत ज़्यादा आज शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया और रिकॉग्नाइज किया इस अवार्ड के लिए। सर युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? युवाओं के लिए ये है कि मेहनत और लगन से अगर कोई भी काम किया जाए, उसमें ऊपर वाले की भी बरकत होती है और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो इसलिए मेहनत करते रहें और कभी न कभी देर सवेर अपना मकाम मिल जाता है सर ये पश्मीना शॉल्स का आप कह रहे हैं स्टॉल्स हैं, तो फिर कहाँ कहाँ है दिल्ली में? ये तो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। मतलब लेकिन दिल्ली में हमारा जो स्टोर है ये साकेत में है। और मैं मतलब लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो एक बार हमारा इंस्टाग्राम भी देखें, हमारे सोशल मीडिया भी किस देखें। नाम से आप? कस्तूरबा हैदर। ओके सर।